Hello, good morning students. So again we'll take some examples from the exercise 7.1. So example number 5, 6 and 7 we are going to finish in this video lecture. So read the example number 5. In example number 5, find the probability distribution of number of successes in two tosses of a die. It means what? Here is the random experiment, that is what two dice are tossed. Two dice are tossed, that is the random experiment, and this is a sample space in which 36 sample points are there, right? So number of successes, that is the random variable. X denotes the number of successes. But what is success? So he has defined the success here, where success is defined as number greater than 4. Number greater than 4 कौन से होते हैं? 5 और 6, that is the number greater than 4. appears on at least one die. वो at least एक die पर तो 5 और 6 होना चाहिए. So at least one die 5 और 6 होना चाहिए. That is the number of success. So 5 और 6 कितने? कुछ टाइम पर 0, 5 है. यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. These 16 elements where 5 or 6 does not appear. So that is x takes the value 0. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, where 5 or 6 appear one time. This also, this also, and 5, 5, 5, 6, 6, 5 and 6, 6. These 4 elements where the number 5 and 6 appear two times. It means x takes the value 0, 1 and 2. So let us, I already write the random experiment and their sample space. So here x denotes number of successes. Number of successes where सक्सेस इज डिफाइंड. सक्सेस उन्होंने डिफाइन किया है. सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6. ग्रेटर देन 4 मीन्स 5 और 6 appears on at least one die. Die single, dice are double. 2 अगर हो तो dice लिखते हैं हम. So x is what? Number of success, where success is defined here. What is called success here? Success is what? Number 5 or 6 appear on at least one die. Number 5 or 6. Why? Because greater than 4 is what? 5 and 6. So here x takes the values. X takes the values 0, 1 and 2. Maximum 2 है 5 और 6 और minimum कितना है? 0. So we have to find number of x is equal to 0. x is equal to 0 कितना है? 0 means 5 और 6 वहां पर नहीं है. So ये सब element 1, 2, 3, 4, 5. No, ये नहीं 4. I will write here. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Means x is equal to 0 means 5 और 6 does not appear on any die. एक भी die पे 5 और 6 नहीं है. So here, so probability number of x is equal to 0 is equal to 16. So this implies their probability x is equal to 0 is equal to 16 by 36. Now number of x is equal to 1.
means 5 or 6 appear in one die, appear on one die. So what are that? 1 5 1 6, 2 5 2 6, 3 5 3 6, 4 5 4 6, 4 5 4 6. अब 5 5 और 5 6 नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पर 2 है 5 और 6. सो इट टेक्स द वैल्यूज. नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 4 plus 4 8. This implies their probability is equal to 8 by 36. Now number of x is equal to 2. This is 2 means ये 5 5 5 6 4 6 ना, और ये भी लेना पड़ेगा 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4. So missing some terms are missing here. 5 1 5 2 5 3 5 4. जहाँ पर एक 5 है 6 1 6 2 6 3 and 6 4. So this is number of x is equal to 1 which is equal to 16 and their probability is 16 by 36. 16 by 36. 4 4 16. अब यहाँ पर 2 5 और 6 होना कितना है? ये 5 5 है, 5 6 है, 6 5 है, 6 6 है. So number of x is equal to 2 is equal to 4 and this implies their probability is equal to 4 by 36. 16 plus 16 32, 32 plus 4 36. So x is equal to 0 means what? 5 or 6 does not appear on any die. x is equal to 1 का मीनिंग क्या होता है? 5 or 6 appear on one die, exactly on one die. x is equal to 2 का मीनिंग क्या होता है? 5 और 6 appear on both die. दोनों भी die में 5 और 6 होना जरूरी है. So that is x takes the value 0 1 2. So that is greater than 4. उन्होंने दिया है greater than 4 क्या है? 5 और 6 ही है. So this is the probability. Then probability distribution of x is, सिर्फ इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में. टेबल करो ऐसा. x takes the values 0 1 2 and 3. Zero probability 16 by 36. नहीं, ये 3 तो नहीं है, सिर्फ 2 ही है. So 1 by, it is also again 13, 16 by 36 and last is what? 4 by 36. So our question is what? We have to only find out the probability distribution. हमें सिर्फ probability distribution ही find करना था. So ये होगा उसका probability distribution. So this is the probabilities where set of ordered pair where x is the terms of the random variable and their corresponding their probability. So this is the answer. Sum of all probability definitely 1 ही आएगा. So this is the solution of example number 5. बहुत ही simple example है. सिर्फ यहाँ पर क्या है? x is a number of success. But success क्या है? Success is defined as number which is greater than 4 at least appear on the at least one die. So that is the x. X takes the value 0 1 2. ये 0, ये 1 और ये 2. So this is simple solution of example number 5. We'll take immediately example number 6. Let us see the example number 6. In example number 6, read carefully the example number 6.
from a lot of 30 bulbs. So there are 30 bulbs in the lot which include 6 defective. उसमें 6 defective bulbs हैं. A sample of 4 bulbs is drawn at random. हमें सिर्फ 4 बल्ब का सैंपल लेना है from the lot of 30. With replacement, with replacement का मीनिंग क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है कि अगर हमने जो भी बल्ब वहाँ से ड्रॉ किया है, सो जो भी ड्रॉ किया है वो रिप्लेस नहीं होगा लॉट में, वही रहेंगे, बाहर ही रहेगा. नहीं तो कैसा 1 बॉल इज ड्रॉ करने के बाद फिर उसको अंदर डालना, सो दैट बिकम्स अगेन 30. सो दैट इज विथ रिप्लेसमेंट. तो उसको रिप्लेस करना है, फिर बाद में वही 30 रहेगा अंदर लॉट. हमने अगर एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव है तो फिर उसको अंदर रखना है, सो दैट बिकम्स अगेन 30 बल्ब्स इन द लॉट. मीन्स वो 29 नहीं बनेगा, 28 नहीं बनेगा, 27 नहीं बनेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज विथ रिप्लेसमेंट. मीन्स दैट ऑल ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट. सब ड्रॉज इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है, सो दैट इज कॉल्ड एज विथ रिप्लेसमेंट. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. So number of defective bulbs कितने हैं? So first up we write mention there are 30 bulbs which includes 6 defective bulbs. So X denotes number of defective bulbs. 4 bulbs are drawn. 4 bulbs are drawn. So bulbs defective कितने रहेंगे? एक तो चारों भी defective रहेंगे, मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, नहीं तो 0. 0 मीन्स व्हाट? जो भी हमने बल्ब ड्रॉ किए सब नॉन डिफेक्टिव है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्स टेक्स द वैल्यू 0, 1, 2, 3 और 4. सो एक्स टेक्स द वैल्यूज 0, 1, 2, 3, 4. राइट. सो विथ रिप्लेसमेंट, तो यहां पर लिखना पड़ेगा drawn bulbs are with replacement. That is draws are independent experiment. इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट है. सो एक्स टेक्स द वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू 0. अगर एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लिया, सो इसका मीनिंग है ऑल आर नॉन डिफेक्टिव. डिफेक्टिव क्या है? हाँ, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव. ऑल आर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स. ऑल आर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स मीन्स कितना? probability x is equal to 0 is equal to 24 by 36, 24 by 36, 24 by 36 and 24 by 36. 36 नहीं 30, because total bulbs are 30. जो भी पहला भी है नॉन डिफेक्टिव है. टोटल कितना है? 30. उसमें 6 डिफेक्टिव है. सो 24 नॉन डिफेक्टिव हो गए और 6 क्या हो गए? डिफेक्टिव है. तो जो चारों भी बल्ब हमने निकाले वो सब नॉन डिफेक्टिव है. 24 by 30, 24 by 30, 24 by 30, 24 by 30 मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज ऑल ड्रॉज आर इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट. सब इंडिपेंडेंट है. अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट. सो ऑल आर नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स मीन्स जो भी जितने भी 4 हमने बल्ब निकाले, रिप्लेस किए, ड्रॉ किए, सब नॉन डिफेक्टिव बल्ब है. सो 24 by 36, 24 by 36, 24 by 36, 24 by 36. रिप्लेसमेंट, दैट्स वाई एवरी टाइम 30. इज इट क्लियर? अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये 30, 29, 28, 27 बनेगा, क्योंकि हमने वो बाहर ही रखा है. जो भी निकाला है बल्ब रिप्लेस नहीं किया अंदर लॉट में, बैग में रिप्लेस नहीं किया.
सो दैट बिकम्स 29, दूसरा निकाल दो 28, तीसरा निकाल दो 27 और निकाल दो एक 26। बट ये विथ रिप्लेसमेंट है, सिर्फ देखना है डिफेक्टिव है नॉन डिफेक्टिव है, फिर बाद में उसको और रखना है, दैट इज कॉल्ड एज विथ रिप्लेसमेंट। सो इट इज अ 4/5, it's a 4/5, it's a 4/5, 4/5, 6 4s are and 6 5s are, 4 into 4 16, 16 to 16 256 divided by 25, 25 625. So this is a probability x is equal to 0. Then x is equal to 1, 1 defective and 3 नॉन डिफेक्टिव। एक डिफेक्टिव और 3 क्या है, नॉन डिफेक्टिव। सो देखो अब ये पर थोड़ा ध्यान दे दो, x इज इक्वल टू 1 कैसे, एक डिफेक्टिव है, एक डिफेक्टिव आउट ऑफ 6/30 इनटू बाकी 3 कैसे, नॉन डिफेक्टिव 25, 24/30, 24/30 एंड 24/30, राइट। और एक दिस इज वन ऑफ द वन पॉसिबिलिटी। सो पहला डिफेक्टिव है, समटाइम्स तो सेकंड चांस में भी डिफेक्टिव आ सकता है, थर्ड चांस में भी आ सकता है, फोर्थ चांस में भी आ सकता है। सो अब और एक पॉसिबिलिटी क्या है, पहला नॉन डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव आ गया, और क्या है चांस पॉसिबिलिटी, और प्लस मीन्स और 24/30 मल्टीप्लाइड 24/30 6/30 24/30 प्लस 24/30 24/30 24/30 and 6/30। We have to select 4 bulbs, 4 बल्ब सेलेक्ट करना है, उसमें से एक डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। 1 by 1 सेलेक्ट करना है, एक निकाला डिफेक्टिव, दूसरे ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, नॉन डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, बाकी 2 नॉन डिफेक्टिव। और क्या पॉसिबिलिटी है, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव। और क्या है, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, चौथा क्या है, डिफेक्टिव है। सो दिस इज ऑल पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट, इट इज ऑल पॉसिबिलिटीज। सो हियर वी हैव टू फाइंड देयर प्रोबेबिलिटी नाउ। x इज इक्वल टू 1, 1/5, 1/5, 4/5, 4/5, 4/5 into plus 4/5, 1/5, 4/5, 4/5 और 4/5, 4/5, 1/5, 4/5 plus 4/5, 4/5, 4/5 and last is 1/5. 6/30 means 1/5. 24/30 means 6 4s are 6 5s are 4/5. सो अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा सोल्यूशन है। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 4 into 4 64, 16, 16 into 4 64, 64 by 625, 64 by 625, 64 by 625, 64 by 625. So this is probability x is equal to 1, ये होगा 625। अब इसके एडिशन 64 से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 256 वही आ रहा है, 256 by 2 625।
अब देखो x इज इक्वल टू 1 होगा, अब x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, आप तो x इज इक्वल टू 2 लेंगे। सेकंड नेक्स्ट x इज इक्वल टू 2, दैट इज व्हाट 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव। मीन्स व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव, लेकिन उसकी पोजीशन कैसे रहेंगी देखो। 2 डिफेक्टिव मीन्स 6/30, 6/30, 24/30, 24/30, ये पहली पॉसिबिलिटी। प्लस अब दूसरी पॉसिबिलिटी मीन्स पहले 2 डिफेक्टिव है, दूसरे 2 नॉन डिफेक्टिव है। अब क्या रहेगा, पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, चौथा नॉन डिफेक्टिव, और प्लस नॉन डिफेक्टिव, 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 नॉन डिफेक्टिव, प्लस नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी, इसमें बिकॉज यहाँ पर एक्चुअल दिमाग का यूज होता है, हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है। नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव। और क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस दोनों हो गए, पहले 2, आखिरी 2, बीच में और फर्स्ट। यह भी रख सकते हैं हम ऐसे, मीन्स 24/30, 6/30, 24/30 एंड 6/30, इतनी पॉसिबिलिटी है। अब मैं इसका डायरेक्टली कैलकुलेशन लिखता हूँ, आप ये कैलकुलेशन करो। (96) इसमें और एक चांस है, देखो ये 30, 6/30, 1 2 3 4 5, 6/30, बीच में 2, ये रह गया अपना 24/30, 24/30 एंड लास्ट 6/30, ये होगा 96/625। आप कैलकुलेशन करो, ये पहला और लास्ट नॉन डिफेक्टिव, बीच में नॉन डिफेक्टिव, दिस आर द पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी नाउ x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, दैट इज व्हाट 3 डिफेक्टिव and 1 non-defective, 1 what non-defective, पहले 3 डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी x is equal to 3, 3 डिफेक्टिव मीन्स व्हाट 6/30, 6/30, 6/30 और एक नॉन डिफेक्टिव 24/30 प्लस पहला 24/30 और लास्ट 6/30, 6/30 ये 6/30 प्लस और क्या पॉसिबिलिटी है
6 by 30, 6 by 30, 24 by 30, 6 by 30 और 3 डिफेक्टिव होना, एक नॉन डिफेक्टिव होना। 6 by 30, 24 by 30, 6 by 30, 6 by 30। यहाँ पर लास्ट में, फर्स्ट में, थर्ड में, सेकंड में, इतनी ही पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं हो सकता। आखिरी में 30 सब हो गया। सो इसका भी मैं डायरेक्टली आंसर लेता हूँ। x इज इक्वल टू 3 का इसका कैलकुलेशन आप करो। 16 by 625, 16 by 625, ये 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, 6 by 5, so 6 by 625, 6 by 625, 6 by 625, 6 plus 6 plus 6 देखो कितना आ रहा है। ये 4 by 5, ये 4 by 5 आता है ना ऐसा। 4 by 5, 4 by 5, 4 by 5, 4 by 5, 4 by 625, 4 by 625, 4 by 625, 4 by 625, 4 plus 4 plus 4 plus 4, that is 16 by 625. अब लास्ट x is equal to 4, ये मेन, ये एक मेन और ये x is equal to 1। अब ये x is equal to 4, all defective, all 4 defective bulbs, so their probability, all 4 means what? 6 by 30, 6 by 30, 6 by 30, 6 by 30 and is 6 by 30, right? 6 by 30 चारों भी डिफेक्टिव बल्ब है। सो डिफेक्टिव कितना है? 6 डिफेक्टिव बल्ब है और उसमें 30 नॉन डिफेक्टिव है, 24 नॉन डिफेक्टिव है। सो इसका कितना आता है आंसर? 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, 1 by 5, इट्स 1 by 625। सो ये चार अपने प्रोबेबिलिटीज। सो इसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ पर मैं ये जो क्वेश्चन में रिमूव करता हूँ, यहाँ पर टेबल बनाता हूँ उसका, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देन probability distribution of x is, so this is the table where x takes the value 0, 1, 2, 3 and a 4 and their corresponding probabilities. 256 by 625, 256 by 625, 2 के लिए 2, 96 by 625, 3 कितना था? 16 by 625 और लास्ट कितना है? 1 by 625। न्यूमरेटर की एडिशन करो, डेफिनेटली यू विल गेट 625 बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दैट इज आवर द कंडीशन फॉर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो ये जो है 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करना है और हर एक पोजीशन उसके आना चाहिए, ऑल पॉसिबिलिटी आना चाहिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। ओके, लंबा सोल्यूशन है, कैलकुलेशन है, लेकिन आपको हर चीज उसमें अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 6। वी विल टेक नंबर 7। ओके, सो कॉपी इट। So let us see the example number 7. So read the example number 7. The coin is tossed twice. 2 बार coin toss करना means number of sample space कितना है? 4 है। If 2 coins are tossed, but condition is what? A coin is biased such that so that the head is 3 times as likely to occur as tail.
सो ऐसा कॉइन बाइस है कि उसका हेड की पॉसिबिलिटी 3 टाइम्स है एज लाइकली एज टेल्स, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आएंगे 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा 1/4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3 टाइम्स एज लाइकली एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज 3 टाइम्स 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज व्हाट 1/4. सो रैंडम एक्सपेरिमेंट पहला लिखना जरूरी है. 2 coins are tossed. A coin is tossed twice. क्यों ऐसा लिखो, दोनों एक्सपेरिमेंट सेम है. A coin is tossed 2 times, twice. So sample space, all head, head tail, tail head, tail tail. X denotes number of tails. नंबर ऑफ टेल्स. सो एक टेल्स की पॉसिबल टेल्स कितना है 2 है 1 है और 0 है. एक्स टेक्स द वैल्यू 0 1 एंड 2. बट ये लिखना है कि गिवन, ये गिवन लिखना है कॉइन इज बाइस such that head is 3 times as likely as tail. This is given. Therefore, probability of H is equal to 3/4 and probability of tail is equal to 1/4. So this is given. So x takes the value 0 1 2. So x is equal to 0. So this is 0 tail. यहाँ पर है 0 tail. Means therefore probability of H which is equal to probability of H into probability of H. 3/4 into 3/4, it's a 9/16. X is equal to 1 tail HT and TH. HT TH दो ही जगह पर एक टेल है. X is a number of tails which takes the value 0 1 and 2. So probability of HT and TH is equal to probability of H into probability of H plus T plus probability of T into probability of H. It's a 3/4 1/4 plus 1/4 into 3/4. 3/16 plus 3/16. It's a 6/16. 6/16. अब लास्ट स्टेप x इज इक्वल टू 2 मीन्स दोनों भी टेल होना जरूरी है. टी सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दोनों भी टेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी. दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/4 which is 1/16. सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन वो जो कंसेप्ट वो अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि व्हाट. सो ऐसा 22 कॉइन दिया है कि हेड की प्रोबेबिलिटी टेल से 3 टाइम्स है. हेड की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स एज लाइकली एज द टेल. वी वेंट टू कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स and x denotes the number of tails. X denotes the number of tails. X is a random variable which is called a discrete random variable which takes the value 0 1 2 and this is the sample space. Number of S is equal to obviously 4 ही है, आपको लिखना है वहाँ पर. So ये दो important given coin is biased such that head is 3 times as likely as tail. So 0 tail, 1 tail and 2 tail. So this is the possibility. Now then
probability distribution of X is, we have to find the probability distribution of X. X is what? Number of tails, number of tails. So write this table. This is the probability distribution. X takes the values 0, 1 and 2. Their corresponding probability. First is 9 by 16, second is 6 by 16, लास्ट इज 1 by 16. सबकी प्रोबेबिलिटी एडिशन करके देखो 9 + 6 15 है, 15 + 1 16 है, 16 by 16 1 आना चाहिए. सो दैट इज द कंडीशन. इट इज अ क्रॉस चेक बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1 बिकॉज दिस इज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. PMF है. सो वही आंसर है 9 by 16, 6 by 16, 1 by 16. ये जो प्रोबेबिलिटीज है उसको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया हमने with their corresponding variables X. So this is the example number 7. This is a solution of example number 5, 6 and 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14, 15, 16 all done in the previous video lecture. So this is the enough study of exercise 7.1. In next video lecture we will take the miscellaneous exercise for the discrete random variable. Okay. अब ये साल में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ये जो पार्ट है वो डिलीट हुआ है. सो हम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ही एग्जांपल सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के नहीं है. सो आप मिसलेनियस में ऐसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही होना चाहिए. ओके. सो टुडे विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच.